Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news headlines from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So let's start with the session for today. But before we start with the new session, we are going to look at the questions which I have asked in the previous classes. So let's look at your comment box. Again, a repetition of my previous appeal that if you have any doubt, any feedback, if I've asked you any question, please try to answer it in the handout. We are going in your comment box. We are going to discuss it in my next session. Okay. So in the previous class, we discussed that it is the state government which notifies the national park, which notifies tiger reserve, wildlife sanctuary. Then I asked you a trick question. I would call it a trick question because I asked you which is the government which notifies the biosphere reserve, or which is the authority. I did not use the word government, I use the word authority. So remember this, biosphere reserve is an international recognition which is done by UNESCO under its Men and Biosphere program, MAB program. So it is neither the central government nor the state government. It is a international recognition which is given by UNESCO. So please keep a note of it. Moving on to the next question, which I asked you in the previous class. Which state has the highest population of elephants in India? And most of you have answered there, has answered it correctly as the state of Karnataka. Another question which I asked you in my previous class was that Ibrahim Raisi, who is the late Ibrahim Raisi, who was the former president of Iran, died in a helicopter crash, and he was traveling from X country to his own country, the country of Iran, and the country from which he was traveling was Azerbaijan. So these are the kind of question like these are the kind of question which are trickier question and might be asked in your exam also. So please keep note of these kind of questions also. Next question which I asked you was International Atomic Energy Agency, where is its headquarters located? And most of you have given the right answer, which was Vienna, Austria. So it is in Vienna, Austria, where the headquarters of IAEA located. And interestingly, Narendra Modi visited this country after a very long period. So that's why also Vienna and this IAEA becomes important for us. And another question which I asked you in my previous class was, who among the following, or who is the judge from India who is serving a 9-year tenure in your International Court of Justice, which is also known as World Court or UN Court, and the name is Dalveer Bhandari. And I give you a hint also in the last class that he was previously a judge in the Rajasthan High Court. So these are the answers to the question which were asked in our previous classes. So again, a repetition. If you have any feedback, any doubts, any topic which you want us to cover, any MIT topic, most important topic, that series is also ongoing on our CLAT Prep channel. So if you have any suggestion regarding those, you can ask us in the comment box and we'll try to take your doubts, try to implement your feedback in our next class. Okay, so this was the comment box. Now it's time to look at the news headlines from today's newspaper. So today's newspaper, I would say, is very easy if I talk about CLAT. The only reason why I'm saying so is because if a very important topic like your economic survey or budget is being covered in newspaper, you can be very sure that there would be a very good coverage in your coaching notebooks also, in your notes also. So the good thing is that you don't have to concentrate very much on the news items, because you should be aware that all of this is going to be properly covered in your class also. So what you can do is you just have a reading of those newspapers. In any case, I always advise that only reading is sufficient for this. So economic survey पे आपका हिंदू के अंदर में I would say half of the newspaper of Hindu, half of Indian Express is covered with news regarding economic survey only. So economic survey आपके first page पे हिंदू में start हुआ है, उसके and same is the news headlines on the first page of Indian Express also. उसमें पहली न्यूज तो यही है कि as per economic survey इंडिया की जो ग्रोथ रेट होने वाली है that is going to be around 7%. My apologies for this technical error. So as per the economic survey, it predicts that India's growth rate in the next financial year, or in the upcoming financial year, is going to be around 7%, which is a healthy rate of growth. However, it is below the earlier expectation of 8%. So again, most of the students usually ask us, do we need to remember these 7%, 8% data points? So again, my advice would be you don't have to remember it. In any case, we are going to provide you with a list of data points which might be asked in your exam just before the exam.
exam. So in the months of November, there would be a list of data points for your purpose. So otherwise you don't have to remember. So what we can do is we can go through the basics of economic survey, because many of you might not even be aware what is basically an economic survey. So first thing which you should know is that, as the name suggests, it is a survey of economic activities in the previous year. What are the scope where there is possibility of reform, and how we can better our performance economically. However, because you are giving a 11th, 12th level exam, a CLAT examination, the level of question is also going to be of that level only. So for example, a simple question can be asked is, which of the ministry is responsible for drafting of economic survey? So simply the ministry can be asked. For example, the ministry is Ministry of Finance. A more detailed question can be, which of the department in Ministry of Finance is responsible for preparation or for formation of this economic survey? Then you should know that it is Department of Economic Affairs in Ministry of Finance, which is responsible for creation or preparation of this particular economic survey of every year. And which is the most important person, or who is the lead author, main writer of this economic survey? Then you should know that it is the Chief Economic Advisor. Chief Economic Advisor. Okay. Rest other facts, usually what kind of questions can be asked in your exam regarding economic survey? That when was the first economic survey presented? So first it was presented in 1950-51. So another thing which has been which is provided at many places is that although it was first presented in the year 1950-51, it was earlier part of your budget. So it was not a separate document. Till 1964, it was presented as part of the budget document only. But since 1964, economic survey is presented separately from the budget. Also, usually the custom is, it is not something which is done by law, but it is only a custom that economic survey is presented just a day before the budget. So for example, today on 23rd of July, the budget is being presented. So economic survey would be presented a day before, that is on 22nd July, and that was the case. So कल के दिन में आपका जो बजट था उसको प्रेजेंट किया गया. एक कल का दिन आई थिंक वो भी डिस्कस करना चाहिए. कल डेट थी 22 जुलाई, which is also known as pi. पाई की वैल्यू भी 22/7 ही होती है. एंड आई होप यू नो कि अगर इसको मैं डेसिमल पॉइंट्स में लिखूं तो इट इज 3.14. सो इस टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड दिस. तो कल की जो डेट थी 22/7 विच इज ऑल्सो द पाई नंबर, तो कल की डेट को हम पाई डे भी बोलते हैं. ओके, सो 3.14. Okay, so our question has also been created in the 20 GK question. वहां पे if you can answer this question also. Okay, इसके अलावा very importantly इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में रिकमेंडेशन दी गई है, क्या वो बाइंडिंग होती है या नॉन बाइंडिंग होती है. सो रिमेंबर दिस कि जस्ट लाइक फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, दीज आर ओनली रिकमेंडेशंस एंड दीज आर नॉन बाइंडिंग. These are non-binding. So if the government wants to follow them, it can follow them. If the government does not feel like that these need to be followed, or the government, our economy is prepared for such kind of recommendation, then the government might not follow. However, the trend has been कि whatever is being advised in the economic survey, government usually follow them. However, we are concerned about the legality of those recommendations, and the legality is that they are not binding, which means it is up to the government whether they want to follow it or not. And finally, the most important person involved in the drafting of this this economic survey is the Chief Economic Advisor. And again, as the name suggests, who is the Chief Economic Advisor, or what is his job? So his simple job is to advise the government on economic matters. So he's the chief architect of the economic policy in India, and usually he's there to advise the government, to advise the Ministry of Finance, to advise the finance minister what kind of economic policy we should be having in India. Okay, remember this, he heads the economic division of the Department of Economic Affairs. So the department which prepares this, he is basically the head of this particular department. Earlier, the Chief Economic Advisor usually used to be appointed by the UPSC, and it used to be a person who was either from the IES, Economic Services, Indian Economic Services, or he used to be an IAS or some government servant. However, recently the trend has changed. Since 2009, the government has also started to appoint experts from outside. An example would be Raghuram Rajan. So these were the kind of persons who have been appointed as Chief Economic Advisor also. Later on, they also became RBI Governor's Deputy Governor, and one of our previous Chief Economic Advisor has also become the Prime Minister, and he was earlier Finance Minister also. So again, in the comment box,
if you can answer this question in the comment box, if you can answer this question, who is the only chief economic advisor? I think it's very easy to answer this. Who was a previous chief economic advisor of India, who has also become prime minister of India? And hint would be he was earlier the finance minister of India also. So who is the only chief economic advisor who has also become the prime minister of India? So with regard to the economic survey, these are the kind of questions which usually come in your exam. So we are going to restrict ourselves to these type of questions only. For example, if you ask me whether you should read the whatever information is provided in economic survey for purpose of GK, so my answer would be ki the chances of a question coming from economic survey regarding what is the GDP forecast, what is the particular recommendation in this particular sector, for example, what the government should be doing in the aviation sector, is one of the recommendation of this particular economic surveys. These are not the kind of question which comes in your exam. However, it does not mean that you have to skip all of these news. Please read these news because they become important passages for your English and your reasoning sections. So don't blame me if you don't read them and then a passage comes up in English and or your reasoning, because I am the one who is advising you. Please, you have to read all of these passages also. Okay, so these were some details regarding the economic survey. Otherwise, it is not required to be done in much detail. Okay, so next पे आते हैं. Next is your कावड़ यात्रा. So controversy इस पे originate हुई है. So many a times one or two students in my class actually asked me, सर कि कावड़ यात्रा होती कैसी, क्या है इसका मतलब. तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स को कावड़ यात्रा क्या होती है वो तो पता होनी ही चाहिए. जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो हम बस ऑरली डिस्कस कर लेते हैं. तो कावड़ यात्रा न्यूज में इसलिए बिकॉज यूपी की गवर्नमेंट ने अभी एक नोटिफिकेशन निकाला, एक सर्कुलर निकाला, एंड उसमें उन्होंने एक गाइडलाइन इशू करी, एंड उसमें ये बोला गया कि कावड़ यात्री या कावड़ यात्रा करने वाले जो डिवोटीज हैं, ये जिस रूट से जाते हैं उस रूट पे जितने भी आपके ढाबे पड़ते हैं, जितनी भी शॉप्स पड़ती हैं, उन ढाबे और शॉप्स पे, फूड स्टॉल्स के ऊपर पे उस पर्टिकुलर दुकान के ओनर का नाम वहां पे लिखा होना चाहिए, उसका फुल नेम वहां पे लिखा होना चाहिए, उसकी जो मेनू है उसमें जो खाने के आइटम्स है, क्या क्या वो सर्व करता है, वो सब भी होना चाहिए. एंड इसके बाद इस पर्टिकुलर सर्कुलर को यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चैलेंज करा गया. एंड जो पेटिशनर थे उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, ये कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी को जाके बढ़ावा दे रही है. एंड रीजन बीइंग कि अगर आपको रिलीजन पता होगा तो इट इज पॉसिबल कि मेजरली कावड़ियाज जो होते हैं वो हिंदूज होते हैं, तो जो मुस्लिम ओन शॉप्स होंगी ये उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट करेंगे. सो जस्ट बाय बिकॉज यू नो कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, तो शायद आप उस शॉप में ना जाएं. तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को या एक अनटचेबिलिटी, काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन को एक्सेप्ट करा एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को माना. एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या डिसीजन दिया है कि ओनर का नाम बताना या उसका रिलीजन बताना या कास्ट बताना. फॉर एग्जांपल आप सरनेम यूज करोगे, आप रिलीजन तो आपको पता पड़ जाएगा, बट सरनेम अगर आप यूज करोगे तो आप कास्ट भी जान सकते हो. सो not just discrimination on the basis of religion, but discrimination on basis of caste is also possible, because it might be the case एक कावड़ यात्री एक अपर कास्ट हो जो डिस्क्रिमिनेट करना चाहता हो, he does not want to eat from a people who belongs to a lower caste, irrespective कि उसके खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो सकता है. बट बिकॉज आप इस टाइप की अगर एक्टिविटीज को अलाउ करोगे तो आगे जाके इट इज पॉसिबल कि वो पर्सन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस कर पा रहा हो, अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस कर पा रहा हो. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कैंसिल आउट कर दिया है कि आपको इस टाइप के ऑर्डर्स की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोई जगह नहीं. तो अब एक बार का मैं आपको कावड़ यात्रा समझाता हूं. व्हाट इज दिस कावड़ यात्रा? सो ये कई कस्टम्स और ट्रेडिशंस डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसे ही एक आपका कस्टम स्टार्ट हुआ यात्रा करने का, जिसे हम कावड़ यात्रा बोलते हैं. तो ये कावड़ यात्रा वर्ड कहां से आता है और इनको हम कावड़ यात्री क्यों बोलते हैं? तो आपने देखा होगा कि कावड़ यात्री जो होते हैं वो एक बैम्बू का पोल लेके चलते हैं और दोनों साइड में यू वुड से कि दो आपके ऐसे जार टाइप्स रखे हुए होते हैं. मटकी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अर्थन पॉट हो सकता है, बट यूजुअली दो पॉट्स होते हैं, दोनों साइड में स्टील का हो, किसी का भी हो, दो पॉट्स होते हैं. तो वो जो पोल होता है वो उसको हम कावड़ बोला जाता है, उसको कावड़ बोला जाता है. एंड यू मस्ट हैव सीन कि आपने पुरानी स्टोरी भी सुनी होगी कि आपके कई जो पुराने यात्री होते थे वो अपने सन और अपने फादर और मदर को उस कावड़ पे ले जाके पूरी यात्रा कराते थे. तो कहीं ना कहीं इसका ओरिजिनेशन जो है वो वहीं से ही होता है. तो कमेंट बॉक्स में इफ यू कैन आंसर मी दिस क्वेश्चन कि वो जो पर्सन था या जो फेमस सेंट बना जो बाद में जिनको दशरथ ने किल करा था, उस पर्टिकुलर बॉय का नाम क्या
किया था जिसने अपने फादर और मदर को लेके तीर्थ यात्रा स्टार्ट करी थी। तो इट्स अ स्टोरी इन द रामायण एंड आई एम आस्किंग यू द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, सो कावड़ यात्रा क्या होती है? सो कावड़ यात्रा के अंदर में इफ यू आर अ डिवोटी ऑफ शिवा, इट इज बिलीव्ड कि आप अपने शिवा, जो आपके लोकल शिवा में जो भी टेंपल होता है, उसको अगर आप गंगा जल से अगर उसको आप स्नान कराएंगे, उसको आप बेद कराएंगे, तो आपकी जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, जो भी आपकी विशेष होंगी, वो सारी की सारी फुलफिल हो जाएंगी। तो इस पर्टिकुलर बिलीव में ये आपकी कावड़ यात्रा स्टार्ट हुई। तो मेजरली ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा फॉलोड होती है एंड मोस्ट पॉपुलर है ये आपकी इन द स्टेट्स ऑफ यूपी, उत्तराखंड एंड एमपी। अदरवाइज ऑल्सो राजस्थान, हरियाणा, आपके बिहार और उड़ीसा और बाकी सब जो भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, गुजरात, यहां से भी लोग आपके गंगा की साइड में आते हैं। तो कावड़ यात्री का यूजुअली ट्रैवल क्या होता है, पिलग्रिमेज क्या होता है? तो यूजुअली ये ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स द गंगा रिवर। तो गंगा रिवर में कहीं भी कर सकते हैं, बट यूजुअली दे ट्राई टू गो इधर टू गोमुख जो उत्तराखंड में, या फिर हरिद्वार, ऋषिकेश और कोई भी जो इन रूट आपकी गंगा पड़ती है उसको ये उधर जाते हैं। वहां से वो अपने जो उनके पास स्पॉट्स होते हैं उसमें गंगा का वाटर फिल करते हैं एंड देन दे डू देयर जर्नी बैक। तो यूजुअली जब ये जा रहे होते हैं तो ये ऑन फुट होते हैं, जब वापस आ रहे होते हैं ये कई बार ट्रैवल का भी यूज करते हैं, बट जो कई सीरियस डिवोटीज होते हैं वो जाते भी ऑन फुट ही हैं और आते भी ऑन फुट में। तो यही आपकी कावड़ यात्रा है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पॉज दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड यू कैन रीड दिस फैक्ट। इस फैक्ट्स को पढ़ के आपको इजीली याद हो जाएगा। सो यू कैन गो थ्रू दिस फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड क्या होता है कावड़ यात्रा। यूजुअली जो सावन का मंथ होता है, श्रावण महीना जो बोलते हैं आप, तो ये हिंदू आपका मंथ है जो यूजुअली जुलाई अगस्त में पड़ता है। इसी टाइम पे आपकी ये कावड़ यात्री आपके एरिया से निकलते हैं। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द कावड़ यात्रा। Moving on to some other important news from the Hindu newspaper. So यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया लालू प्रसाद यादव का, who is a very popular and a very famous former chief minister of Bihar. और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए बिकॉज ही हैज नॉट बीन एबल टू गेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर द स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार को ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिला पाए हैं तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए। सो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर पार्ट इफ यू हैव ऑलरेडी डन दिस पर्टिकुलर पार्ट। इफ यू हैव नॉट, प्लीज गो लेट्स गो थ्रू दिस डिटेल्स अगेन। सो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है? तो सेंटर ने देखा कि कई ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत कम है। तो रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत कम है तो उनको सेंटर से कुछ मदद की जरूरत होती है, कुछ एक्स्ट्रा ग्रांट्स की जरूरत होती है। तो यहां पे स्टेट आपके सेंटर ने क्या करा, इसने कैटेगराइजेशन करना स्टार्ट करा। तो आपकी पहले एक बॉडी होती थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने यहां पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का एक प्रपोजल रखा। तो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन को उसके लिए बोला गया कि फिफ्थ फाइनेंस कमीशन हमें बताए कि हम किस बेसिस पे एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी स्टेट को दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो फाइनेंस कमीशन था जिसने रिकमेंड करा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, वो था फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ऑफ 1969। ठीक है, तो 1969 में आपका जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन था, इट इज द फाइनेंस कमीशन जिसने आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के फर्स्ट बार कोई बात करी गई। इसके अलावा इट इज द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन जिसने 5 क्वालिफिकेशन बनाए टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर स्टेट एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो उसके लिए 5 क्या क्राइटेरियाज हुए? सो रिमेंबर दिस कि इसमें सिर्फ 1 या 2 क्राइटेरिया नहीं, 5 क्राइटेरियाज अगर आप फुलफिल करते हो देन ओनली, अगेन रिकमेंडरी है तो आप इससे इसको फॉलो नहीं करते हो, फुलफिल पूरा भी नहीं करते हो तो भी पॉसिबल है। बट एट दैट टाइम द क्वालिफिकेशन वर दैट ऑल द क्वालिफिकेशन नीड्स टू बी फुलफिल्ड। एंड इनिशियली जिन स्टेट्स को आपने कैटेगरी स्टेटस दिया था वो सारी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करती थी। तो पहला था कि मेजॉरिटी ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। सेकंड, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मींस पॉपुलेशन बहुत कम है। तो पॉपुलेशन कम है तो ह्यूमन रिसोर्स कम है। तो बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स कम है तो कई स्टेट्स के लिए डेवलप कर पाना मुश्किल होता है। तो अगर आपको ये चीज बहुत अटपटी लग रही है कि भाई कम पॉपुलेशन तो ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज है स्टेट की पॉपुलेशन के पास, हाउएवर दैट इज नॉट द केस ऑलवेज, बिकॉज जो आगे की चीज है उससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आप अरुणाचल प्रदेश का अगर आप एग्जांपल लें तो ये बहुत ही ज्यादा डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है। तो वहां पे कम पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स कम है, तो डेवलपमेंट में उल्टा हार्म ज्यादा, या उसके अंदर में जो आपकी प्रोग्रेस होती है वो उतनी स्पीड पे नहीं हो पाती। ओके, थर्ड इज हिली स्टेट्स हो या क्लोज टू इंटरनेशनल बॉर्डर हो, ईदर ऑफ दिस केस वुड लीड टू दिस पर्टिकुलर स्टेटस। फोर्थ इज स्टेट्स हैव दैट सोशियो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है।
अगेन अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो इंडस्ट्रीज वुड नॉट बी अट्रैक्टेड टू कम योर स्टेट, बिकॉज उसको पता है इंडस्ट्रीज को रन करने के आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। कहीं पे डेंसिटी कम है लोगों की तो आपके पास वहां पे काम करने के लिए ना तो वर्कर्स मिलेंगे, ना एम्प्लॉइज मिलेंगे, ना इंटेलिजेंट पीपल उतने मिलेंगे। एंड फाइनली लैक ऑफ एडुकेट स्टेट फाइनेंसेस, तो स्टेट के पास हो सकता है कि रेवेन्यू के सोर्सेज इन हो। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में ना तो कोई बड़ा कोई माइनिंग रीजन है, ना वो कोई इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, या लेट्स से बिकॉज आई वुडंट ब्लेम द अरुणाचल प्रदेश बिकॉज टूरिस्ट फैसिलिटी शायद सेंटर को डेवलप करनी चाहिए थी, बट इन एनी केस वहां पे टूरिस्ट फैसिलिटी डेवलप नहीं है तो उसके खुद के स्टेट फाइनेंसेस के लिए कुछ भी नहीं है। मेजरली जो आपका अरुणाचल प्रदेश का रीजन या नागालैंड का रीजन है वो नो-गो एरियाज में आता है, तो अगेन उसके पास जो स्टेट फाइनेंस करने के लिए जो रिसोर्सेज है उनकी भी कमी होती है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिसके बेसिस पे किसी पर्टिकुलर स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। सो 2012 के अंदर में स्टेट ऑफ बिहार के लिए 2012 के अंदर में बिहार ने आपका स्पेशल स्टेटस मांगा था और उसके लिए आपने अलग से एक कमेटी भी बनाई थी, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया था, और उसने बिहार को इन क्वालिफिकेशंस पे जस्टिफाइड नहीं पाया गया था और उसने डिसाइड करा कि बिहार इज नॉट फिट फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एज ऑफ नाउ। सो कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया हुआ है? सो एक ऑड वन आउट कर दूंगा मैं, तो बाकी के आप लॉजिक से भी इनको समझ सकते हो। तो एक तो सिंपली आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हो गई, तो जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वो हैं, प्लस इसमें आप सिक्किम को ऐड कर लीजिए, इसमें आप सिक्किम को ऐड कर लीजिए, तो 8 आपकी नॉर्थ ईस्ट। कई लोग सिक्किम को भी नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट मान लेते हैं, बट इट इज नॉट वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, प्लस सिक्किम हो जाएगा। इसके अलावा जो नॉर्थ की आपकी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल हिली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, अभी प्रेजेंटली वो आपकी यूटी बन चुकी है, बट जम्मू एंड कश्मीर था तो आप या तो जम्मू कश्मीर लिखा है तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, अदरवाइज उसके अलावा हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो 3 ये स्टेट हो गई आपकी, तो 7 + 8 11, एंड देयर इज वन मोर स्टेट जो है आपकी तेलंगाना। सो दीज आर द स्टेट, सो इजी टू रिमेंबर। तेलंगाना एक ऑड वन आउट है। 2014 में जब आपने इसे आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके नया स्टेट बनाया तो इसको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। उसके अलावा 7 सिस्टर स्टेट्स हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट की, प्लस सिक्किम हो गया, और 3 आपकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हो गई जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया। सो अगर मैं तेलंगाना को रिमूव कर दूं, बाकी की जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के क्वालिफिकेशंस को जो 5th कमीशन में पुटअप किया गया था उसको फुलफिल करती है। सो आई वुड एडवाइज यू कि आपको ये 5 क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर SCS पता होनी चाहिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर करना है। इफ यू नो दिस आंसर आई वुड आंसर इट इन माय नेक्स्ट क्लास कि कौन सा फाइनेंस कमीशन था, विच वॉज द फाइनेंस कमीशन या विच इज द फाइनेंस कमीशन जिसने इस SCS को स्क्रैप करने के लिए या फिर इसको कम करने के लिए एटलीस्ट की और स्टेट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए हमें, उसका रिकमेंडेशन दिया था। यानी बेसिकली किस फाइनेंस कमीशन के बाद से हम अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को इतना फेवर नहीं करते हैं। हमने अब उसके अंदर में अपने फाइनेंस कमीशन ने एक और रिकमेंडेशन दे दी कि हमें स्टेट्स का जो टैक्स डेवोल्यूशन है, जो उनको पार्ट ऑफ टैक्स मिलता है, उसको इंक्रीज कर देना चाहिए, हर स्टेट को मिल देना चाहिए। तो वो कौन सा फाइनेंस कमीशन है, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आगे मूव करते हैं। सो प्रपोज्ड EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स इज प्रोटेक्शनिस्ट। सो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स के, तो आपके स्टडी मटेरियल में भी ये मेंशन है आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स जो है, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने आपके इकोनॉमिक सर्वे में इसको एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर बोला है। व्हाट इज प्रोटेक्शनिस्ट? प्रोटेक्शनिस्ट मेजर इज बेसिकली जब आप अपनी इंटरनल ट्रेड को बचाने के लिए, उसको आउटसाइड सेक्टर से बचाने के लिए आप उस पर कुछ ट्रेड की बैरियर्स लगाते हो, सो दैट इज अ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर। तो यहां पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स क्या है? सो ये एक प्रपोज टैक्स है, एज ऑफ नाउ इसे किसी ने इंप्लीमेंट नहीं करा है, जो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन प्रपोज कर। तो यूरोपियन यूनियन का प्लान है कि फ्रॉम Jan 1 और 2026, सो 2026 से ये CBAM अप्रोच या इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। एंड व्हाट इज द CBAM? तो बिकॉज यूरोपियन यूनियन सब कंट्रीज ट्राई कर रहे हैं कि उनके अंदर में कार्बन प्रोडक्शन, कार्बन एमिशन कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो जाए, और बिकॉज उनका गोल है कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी चाहिए उनको। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बेसिकली कार्बन न्यूट्रलिटी, कि जितना हम कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना हम कैसे भी एब्जॉर्ब करेंगे, उससे ज्यादा हम आपका एमिट नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, अपनी कंट्रीज के अंदर में यूरोपियन यूनियन ने सब जगह में कार्बन टैक्स इंपोज करना स्टार्ट कर दिया।
विच मीन्स कि अगर आप फॉसिल फ्यूल बेस्ड आप एनर्जी यूज कर रहे हो तो आपको कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा था कि जितनी भी या बहुत सारी जो लार्ज कंपनीज थी जो अफोर्ड कर सकती, उन्होंने अपने जो फैक्ट्रीज थी, उनके जो इन्वेस्टमेंट थे, उनको डेवलपिंग कंट्रीज के साइड मूव कर दिया, टू कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। अब प्रॉब्लम क्या है, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश फॉसिल फ्यूल्स डिपेंडेंट इकोनॉमीज हैं। इसके अंदर में जो मेजरली एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जो मेजरली एनर्जी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, वो फॉसिल फ्यूल या कोल बेस्ड होती। तो उसको डीमोटिवेट करने के लिए और अपनी इंडस्ट्रीज को वहीं की वहीं रखने के लिए ईयू ने प्रपोजल दिया एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का, विच मींस कि अगर आप यूरोपियन यूनियन में कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हो और वो एक एनर्जी इंटेंसिव या फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कंट्री जो यूज करती है, उस कंट्री से अगर वो प्रोडक्ट आ रहा है, तो वहां पे आपको कार्बन टैक्स, जिसको हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स बोलेंगे, वो आपको वहां पे करना पड़ेगा। विच मींस कि जो यूरोपियन यूनियन के अंदर की कंपनीज हैं, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है टू मूव आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लेट्स से एक्स कंपनी हो, जो आप लेट्स से आपकी फ्रांस में आपकी फैक्ट्री है और वहां पे आपको 2% कार्बन टैक्स देना पड़ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इंडिया में शिफ्ट करते हो और आप वहां से इंपोर्ट करते हो, तो एक तो आपको उस ट्रैवल का कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, जो आपका शिपिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो चुका है, उसके अलावा आपको 2% या 3% कुछ भी कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी टू मूव आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यहां पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर क्या कह रहे हैं कि ये मैकेनिज्म शो तो ये कर रहे हैं कि ये कार्बन टैक्स लगा रहे हैं जिससे एनवायरमेंट को सेव कर सकें, बट इनका मेन मोटिव है प्रोटेक्शन करना अपने लोकल इंडस्ट्रीज को, लोकल एनवायरमेंट को। अब why this problem is bad, why this problem is alarming for India basically is because India is one of the major exporter या I would say यूरोपियन यूनियन के लिए मेजर इंपोर्टर जो है आपका विथ रिगार्ड टू आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम, इट इज इंडिया। और अभी आपकी एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से जब ये आपका कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पुल अप होना स्टार्ट होगा, तो जो कंट्री सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगी, तो टॉप 8 कंट्री जिनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उसका, उस पे टॉप पे इंडिया है। तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है वो इंडिया पे पड़ेगा, इसलिए भी हम इसको एक प्रोटेक्शन मेजर कह रहे हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस टाइप के टैक्सेस का इंडिया पे पड़ रहा है, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी बिग एक्सपोर्टर ऑफ आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम टू यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन को जो हमारा कार्बन आपका जो कैपिटल सरप्लस होता है, यूएस के साथ जो आपका सरप्लस होता है, वो सब कहीं ना कहीं अब आपका थ्रेटन में है, थ्रेट टेरिटरी में आ चुका है। तो इसलिए भी हमें इस पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो ये है आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और टैक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट इज अ पर्टिकुलर आर्टिकल, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर में मनी बिल के रिगार्डिंग आपका एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया है। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लैट प्रेप, आपकी पॉलिटी क्लास में मनी बिल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है, बट स्टिल आई वुड से कि आप एक बार इस पर्टिकुलर न्यूज को गो थ्रू कर लेते हैं। सो हाउ एंड व्हेन कैन अ मनी बिल बी डिफाइंड एज अ मनी बिल, और ये हम न्यूज में या ये न्यूज में इसलिए आया हुआ है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट आल्सो, बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि मनी बिल, कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं, ये स्पीकर डिसाइड करता है। और इससे पहले कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बिल्स थे जो ऑर्डिनरी बिल्स हो सकते थे, जिनको एज अ मनी बिल पास किया गया, या फिर कोई मनी बिल पास हो रहा था, उसके अंदर में आपने एंसिलरी टॉपिक्स को इंसर्ट कर दिया और उसके थ्रू मनी बिल के थ्रू से पैसेज कर दिया। तो ये जो प्रोसीजर है, क्या ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं जाता। इस क्वेश्चन को अब सुप्रीम कोर्ट जल्द ही, बहुत ही रिसेंटली अब आपका उसको डिसाइड करने वाला। सो दैट्स व्हाई मनी बिल इज इन। तो मनी बिल आपका होता क्या है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सर्टेन बिल्स को जो बेसिकली मनी मैटर से डील करते हैं, यानी गवर्नमेंट या तो पैसा खर्च कर रहा है या कहीं से कुछ पैसे रेवेन्यू या काम जनरेट कर रहा है, तो वो सारे के सारे जो मैटर्स होंगे वो मनी बिल में आते हैं। सो दैट इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। और मनी बिल आपका अलग से कवर्ड है इन आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 जो है आपका, ये आपकी मनी बिल को डिटेल में डिफाइन करता है। सो व्हाट डज दिस आर्टिकल 1110 सेज, दैट ये वो मनी बिल वो वाला बिल होगा जो एक्सक्लूसिवली मतलब ओनली इनसे डील करता होगा। तो यहां पे एक्सक्लूसिवली वर्ड यूज करा हुआ है, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन भी होगा। या तो वो टैक्स का है, या फिर गवर्नमेंट कुछ बोरो कर रही है, कुछ लोन लेना चाह रही है तो उससे हो,
कस्टडी की बात हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की या कंटिजेंसी फंड की, तो आपके तीन टाइप से फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट। तो कंसोलिडेटेड फंड का और कंटिजेंसी फंड से कस्टडी या पेमेंट की बात हो, विड्रॉल की बात हो, तो उससे भी आपका मनी बिल हो जाएगा वो। अगर आपको कोई पैसा इनसे निकालना है, इन पर्टिकुलर फंड से एक्सपेंडिचर करना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मनी बिल। इसके अलावा कोई आपकी रिसीट्स है कंसोलिडेटेड फंड के अंदर में, पब्लिक अकाउंट में, या ऑडिट ऑफ अकाउंट्स है यूनियन या स्टेट्स की, वो सभी मनी बिल की ही डेफिनेशन में आते हैं। एंड इसके बाद में लास्ट क्लॉज क्या आता है, एनी मैटर इंसिडेंटल टू द अबव 6 मैटर्स। अब यहां पे ये जो इंसिडेंटल वर्ड है, इसका गवर्नमेंट शायद मिसयूज कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा है कि इन इंसिडेंटल मैटर्स के अंदर में क्या आप अनरिलेटेड टॉपिक्स को, जो फॉर एग्जांपल की मनी बिल का जो पार्ट है वो बहुत कम है, एक्सपेंडिचर का पार्ट बहुत कम है, बट मेजरली वो किसी और से डील करता है, तो क्या आप उसे एज अ मनी बिल पास करा सकते हो। And why the Supreme Court is concerned about this? Because money bill को पास करने का जो प्रोसीजर होता है, it is different from an ordinary bill. So unlike a ordinary bill जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की इक्विवेलेंट पावर होती है, मनी बिल के अंदर में लोकसभा जो होती है वो एक सुपर पावर होती है, और राज्यसभा के पास में कोई भी एक, आई वुड से, कोई रियल पावर नहीं होती है। सो एक बार हम प्रोसीजर देखते हैं, सो यू वुड रियलाइज कि राज्यसभा के पास में एक्चुअली कोई रियल पावर नहीं होती है फॉर पैसेज ऑफ मनी बिल। सो पहली चीज कि फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला पॉइंट ही इसका यह है मनी बिल का, कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, एंड ऑल्सो इसे प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करता है। सो इट इज इंट्रोड्यूस बाय द प्रेसिडेंट। अगर इसे प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करता है तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि यूजुअली इट इज द गवर्नमेंट जो मनी बिल को लेकर आती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे, मिनिस्ट्री रिकमेंड करेगी, तो ही मनी बिल आ सकता है। कोई प्राइवेट मेंबर, अपोजिशन मेंबर मनी बिल को नहीं ला सकता है। इट इज ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट ही से इंट्रोड्यूस करता है, और सिर्फ ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, अनलाइक एन ऑर्डिनरी बिल जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंस या पहला जो स्पेशल फैक्टर रिगार्डिंग मनी बिल वो यही मिल गया। सेकंड, पासिंग। सो लोकसभा से ही इसको पासिंग रिक्वायर्ड होती है, मेजरली जो पासिंग और लोकसभा से रिक्वायर्ड होती है। राज्यसभा इसको अगर पास नहीं करती है तो उसका कोई रिपरकशन नहीं होता है। राज्यसभा एट मैक्स 14 डेज तक इसके ऊपर पे डिस्कशन कर सकती है, एंड व्हाट इट कैन डू इज इट कैन रिकमेंड चेंजेस। एंड व्हाट अबाउट दिस रिकमेंडेशन, आर दे बाइंडिंग? सो द आंसर इज दे आर नॉन बाइंडिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट यही आपका, मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट राज्यसभा रिकमेंडेशन, यानी कि लोकसभा उसे एक्सेप्ट करना चाहे, उसमें चेंजेस अमेंडमेंट करना चाहे मनी बिल में तो वो कर सकती है। अदरवाइज राज्यसभा अगर कुछ अमेंडमेंट देती है या नहीं देती है और उसको पास नहीं करती, तो 14 डेज में उसे राज्यसभा से ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। थर्ड, इसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनल अप्रूवल। सो ऑब्वियसली सिर्फ लोकसभा का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, और बेसिकली बिकॉज अगर रूलिंग गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है तो हम इसको पैसेज मान ही लेते हैं। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपका मनी बिल पास नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अंदर में लोकसभा का आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, विच मींस अगर मनी बिल पास नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि आपका लोकसभा ने ट्रस्ट खो दिया है, इसलिए अब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आओ। इसके बाद बहुत ही कंट्रोवर्शियल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये डिसाइड कैसे होता है कि ये ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है। तो उस सिचुएशन के अंदर में लेट्स से प्रेसिडेंट ने मनी बिल के टाइप से किसी बिल को इंट्रोड्यूस करा, बट उस मनी बिल को इंट्रोडक्शन के बाद स्पीकर डिसाइड करता है कि एक्चुअल में मनी बिल है या नहीं है। तो जो स्पीकर का ऑफ लोकसभा होता है वो सर्टिफिकेट करता है, सिंपली एक उस पर स्टैंप लगा देता है दैट दिस पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट जो स्पीकर का डिसीजन होता है इट इज फाइनल। तो लेट्स से अगर लोकसभा स्पीकर ने एक ऑर्डिनरी बिल को मनी बिल बोल दिया, लेट्स से कि इल इंटेंशन थी या फिर उनसे गलती से हुआ, बट उनका डिसीजन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल होता है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट इस क्वेश्चन को भी डिसाइड करेगा कि क्या स्पीकर का डिसीजन फाइनल है, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं। माय ओपिनियन इज कि बिकॉज जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर होता है, तो इस पर्टिकुलर डिसीजन को भी यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये प्रूव हो जाए कि स्पीकर का डिसीजन आर्बिट्री था या विद मैलाफाइड इंटेंशन था या अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वो जो स्पीकर का डिसीजन फाइनल नहीं होगा उसे जुडिशियल रिव्यू करा जा सकता है। ओके, हिस्टोरिकल ओरिजिन बताया हुआ है, तो ऑब्वियसली यूके से हमने, तो मेजरली जो भी आपके पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स हैं वो हमने यूके
से ही लिए हैं। इसके अलावा हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर ओवर द बजट वर कर्टेल इन 1911। तो जो आपका अपर हाउस होता है यूके के पार्लियामेंट में, दैट इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो पावर थी वो 1911 में कर्टेल कर दी गई थी। तो सिमिलरली जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग स्टार्ट किया 1950s में, हमने भी इसी पर्टिकुलर क्लॉज को यूज करा। तो राज्यसभा की जो पावर होती है वो भी कर्टेल्ड ही होती है। इट कैन लेट्स से इट कैन डिले द पैसेज ऑफ अ मनी बिल बाय मैक्सिमम ऑफ 14 डेज, अदरवाइज इट्स पैसेज इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके अलावा जो करंट आपके मनी बिल में कौन कौन से इश्यूज हैं, तो 2019 का एक केस है रॉजर मैथ्यू करके, उसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कि मनी बिल कौन से बिल मनी बिल हो सकते हैं, कहां कहां पे इसका मिसयूज होता है, या फिर स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता ही नहीं होता। तो रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक 2019 का केस है, जिसके अंदर में इट वाज रेफर टू अ लार्जर बेंच। अब लार्जर बेंच इसको डिसाइड करेगा। तो मेन दो इश्यूज जो आपके सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है, इट इज विथ रिगार्ड टू कॉलिंग दिस आधार एक्ट। तो आधार एक्ट था जिसमें हमने आधार को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था। अब इस पर्टिकुलर एक्ट को भी एज अ मनी बिल पास किया गया था, सो इट वाज कॉल्ड एज मनी बिल। तो यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि यस ऑब्वियसली आधार को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ फंडिंग रिक्वायर्ड होगी। तो क्या उस फंडिंग, बिकॉज आधार में हम कंसोलिडेटेड फंड से पैसा यूज करने वाले हैं, तो क्या मैं आधार एक्ट को यहां पे एक मनी बिल डिक्लेयर कर सकता हूं? नहीं। तो एक क्वेश्चन ये होगा। सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि आधार का बेसिक पर्पस क्या है कि लोगों को स्कीम्स का फायदा पहुंचाना, उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना, और उसके अंदर में हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा डिलीवर करेंगे। तो क्या आधार एक्ट का पर्पस है कंसोलिडेटेड फंड से पैसे को निकालना? तो क्या उस बेसिस पे हम उसे क्या हम उसे एक मनी बिल डिक्लेयर कर सकते हैं? बिकॉज मेजरली आधार एक्ट क्या करता है? आधार एक्ट इज बेसिकली अ प्रोविजन की जिसके अंदर में हम आधार को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हर कोई पर्सन की एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हो सके। सो आधार इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो क्या हम एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लॉ को एज अ मनी बिल पास कर सकते हैं, या ये एक ऑर्डिनरी बिल की तरह पास होना था? सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तो जो मैंने आपको बताया सेक्शन 7 में है, दिस इज द कंट्रोवर्सी। सो आप एक बार इसको रीड करेंगे सो यू विल गेट एन आइडिया कि बेसिकली आधार एक्ट की प्रॉब्लम क्या है। इसके अलावा फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017, इसके अंदर में कई ट्रिब्यूनल्स को इन्होंने अमेंडमेंट करके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को रीऑर्गेनाइज कर दिया, इसके चेंजेस भी करे। तो फाइनेंस एक्ट के अंदर में यूजुअली आप टैक्स के प्रपोजल्स होते हैं, बट आपने इसमें क्या करा, इसके अंदर में आपने ट्रिब्यूनल्स के अंदर में रीऑर्गेनाइज करना वो सभी, तो आपने डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स को रीऑर्गेनाइज कर दिया इन द फाइनेंस एक्ट ऑल्सो। तो मेजरली फाइनेंस एक्ट मनी बिल्स, मनी के मैटर से डील करता है। तो यस, फाइनेंस जो एक्ट है वो आपका एक मनी बिल होगा। बट क्या मैं फाइनेंस एक्ट के अंदर में इस टाइप के अमेंडमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं या नहीं? फॉर एग्जांपल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और बाकी ट्रिब्यूनल्स के अंदर का कंपोजिशन क्या होगा, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, उसका मनी बिल से कोई लेना देना नहीं है। इट्स नॉट अ मैटर इncidental, it's not a matter even incidental to the money matters of taxation और एक्सेट्रा। तो जो मनी बिल आर्टिकल 110 में जो आपको प्रोविजन प्रोवाइड है, कुछ भी यहां पे फुलफिल नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली ये डिसाइड करेगा कि कहीं यहां पर जो आपकी लोकसभा या आपकी गवर्नमेंट है वो राज्यसभा को तो बाईपास नहीं करना चाहती थी। सो दैट वुड बी द क्वेश्चन, दोस वुड बी आंसर इन द बाय द सुप्रीम कोर्ट नाउ। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग योर मनी बिल। मूव करते हैं। सो दो आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज हैं। सो अगेन स्पोर्ट्स आपके लिए इस साल इंपॉर्टेंट है, तो एक दो फैक्ट्स हैं जो आज के न्यूज़पेपर में आए हैं। एक तो यह है कि टूर दी फ्रांस होता है आपका, टूर दी फ्रांस होता है आपका, विच इज बेसिकली अ बाइसिकल रेस। फ्रांस के अंदर में होती है मल्टी स्टेज आपकी बाइसिकल रेस होती है, एंड इसको विन करा है टाडेज पोगाकार ने। टेडेज या टाडेज पोगाकार जो आपके अभी आपके पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले थे, बट बिकॉज ही हैज नाउ फैटीग हो चुका है इन्हें, तो मे बी अब ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो अगेन टूर दे फ्रांस विनर है, थर्ड टाइम विनर बने हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए हु इज द विनर ऑफ टूर दी फ्रांस। सेकंड इज कि एक इंडियन को आपके ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। तो ओलंपिक ऑर्डर जो होता है वो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देता है, और ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने ओलंपिक मूवमेंट को या ओलंपिक्स को प्रमोट करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करा हो। तो ये एक अवार्ड मिला है अभिनव बिंद्रा को। सो ही वॉज द फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो ओलंपिक्स में जिसने विन करा था, इट वॉज अभिनव बिंद्रा। इनको शूटिंग के अंदर में मिला था और इनको अब ओलंपिक ऑर्डर भी मिला गया। ओके, तो ये कुछ आपके फैक्ट्स थे फ्रॉम द हिंदू। फाइनली हम एक इंडियन एक्सप्रेस से भी न्यूज कवर करते हैं, वेरी स्मॉल न्यूज,
जो बेसिकली है कि एक लिबेरिया करके एक आपकी वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्री, इट्स अ पुअर कंट्री, इसने डिसीजन लिया है कि इसको शायद अपनी कैपिटल सिटी को रीलोकेट करना पड़ेगा। इसकी कैपिटल सिटी का नाम है मोनरोविया, और लिबेरिया अब प्लान कर रहा है इसको रीलोकेट करने के लिए। सो जहां पे यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व, अभी आपके सामने हो रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो सी लेवल राइज हो रहा है, उससे किस टाइप के कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर में हमको भी देखने पड़ेंगे। सो इट इज प्रेडिक्टेड कि 2100 तक अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे ही चलता रहा तो जो मुंबई का कोस्टल पार्ट है, जो आपका जहां पे सारे बड़े बड़े आपके अपार्टमेंट्स है, जो आज सबसे ज्यादा महंगे अपार्टमेंट, वो सब अंडर वाटर हो जाएंगे, या वहां पर रहने की कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। बिकॉज जब भी मौसम खराब होगा तो दे वुड बी द फ्लडेड एरिया, सबसे पहले फ्लडिंग वहीं होगी। तो यहां पे क्या है, लिबेरिया कंट्री की जो कैपिटल है मोनरोविया, वहां के सीनेटर्स ने या वहां के पार्लियामेंट्रियंस ने डिसाइड करा है कि अब हमें इसको इनसाइड में, थोड़ा इनसाइड में मूव करना है, बिकॉज इट्स अ कोस्टल सिटी, अटलांटिक ओशन पे ये उनकी कोस्टल सिटी है, इसको ये अंदर मूव करना चाहते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन, कि बिकॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल्स इट इज गेटिंग फ्लडेड एवरी ईयर। सो एवरी ईयर मोनरोविया में फ्लड्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे गवर्नमेंट को रन कर पाना, गवर्नेंस कर पाना मुश्किल हो रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि राइजिंग सी लेवल होता कैसे, यानी ओशन का लेवल इंक्रीज कैसे हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और आइस शीट्स हो रही है। सो आपके हिमालयस भी पिघल रहे हैं, आपके आर्कटिक ओशन में भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, एंटार्क्टिक में भी आपके ग्लेशियर्स और आइस शीट पिघल रहे हैं। एंड अगेन आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, देयर इज वन कंट्री जिसने अभी अभी अपने सारे ग्लेशियर्स को लॉस्ट कर दिया। अभी 1-2 महीने पुरानी ही न्यूज है, एक कंट्री ऐसी है जिसके अंदर में पहले ग्लेशियर्स थे, अब उसके पास एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है, सारे ग्लेशियर्स उसके मेल्ट हो चुके हैं। Which country I am talking about? Mention it in the comment box. तो ग्लेशियर्स और आइस शीट की मेल्टिंग हो रही है, तो ये वाटर ओशंस में इंक्रीज हो रहा है, जिससे आपका सी लेवल राइज हो रहा है। सेकेंड, ग्लोबल वार्मिंग से ओशंस भी वार्मर होते जा रहे हैं। सो जब ओशन वार्म होता है, वाटर वार्म होता है, तो वो एक्सपेंड होता है। सो रिमेंबर दिस, जो वार्म वाटर होता है वो ज्यादा सरफेस एरिया कवर करता है, ज्यादा एरिया में फैलता है। आइस जितनी होती है, जितना ठंडा पानी होता है, उतना वो कॉम्पैक्ट रह सकता है। सो थर्मल एक्सपेंशन, वाटर इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग मोर एरिया, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, जिससे भी आपका सी लेवल राइज हो रहा है। थर्ड प्रॉब्लम क्या हम देख पा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से आपकी इंटेंस रेनफॉल, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, जिससे भी आपकी फ्लडिंग हो रही है। फ्लैश फ्लड जिसे हम कहते हैं, क्लाउड बस्ट होते हैं, फ्लैश फ्लड्स होते हैं, बेसिकली जिसमें एकदम से बहुत सारी बारिश होती है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है सिटी का, वो उससे कोप अप नहीं कर पाता है। तो ये कुछ आपके सामने, अब आपके सामने एग्जांपल ऐसे आ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम जल्दी से कंट्रोल नहीं करते हैं तो उसके रिपरकशंस नॉट जस्ट ऑन लिबेरिया और नॉट जस्ट ऑन मुंबई, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही विजिबल होने बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, so these were the news headlines from today's newspaper from Hindu and Indian Express. I hope you had a learning environment. कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपने ढंग से कवर करी होंगी। आई वुड एडवाइज कि आप अभी के जो न्यूज़पेपर हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, बजट आ रहा है, इनको प्लीज आप रेगुलरली रीड करें। डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग, बिकॉज इकोनॉमिक बेस अगर पैसेज आता है तो बजट और इकोनॉमिक सोर्स फर्स्ट सोर्स होगा। ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इस बार का बजट जो यूजुअली फेब में आता है, वो आपका अभी जुलाई में आ रहा है एंड आपका एग्जाम दिसंबर में है। तो चांसेस कि ये बहुत ही करंट है आपका बजट इस बार का, तो इसके ऊपर पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आ सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।